सुप्रभात। Today, by chance, I am here. I supposed to be not preaching today. आज मुझे प्रचार नहीं करना था, लेकिन आज मैं हूँ यहाँ पे। Shimi is not keeping, so he asked me 2 days back if I could preach. शिमी की तबीयत नहीं सही है, तो उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि मैं प्रचार कर दूं। So we are putting a small break in the series of messages that we have been listening to. और जो श्रृंखला हम देख रहे थे, मैं दे रहा था, वो आज नहीं करेंगे। So we are preaching one of the old messages actually. और मेरा ये एक पुराना संदेश है जो मैंने बहुत पहले दिया था। I know you all remember the names, but you won't remember the content of the sermon. और शायद आपको वो नाम याद रहे, लेकिन मैंने उसमें क्या क्या बोला था आपको शायद याद नहीं होगा। It always happens. और ऐसा ही होता है अक्सर। So today we are going to talk about hero of faith. और आज हम बात करेंगे जो विश्वास के जो नायक हैं उनकी बात करेंगे। Now the Bible is filled with heroes of faith. और वचन में हमारे पास बहुत से विश्वास के नायक दिए गए हैं। Hebrew 11 talks about so many of them. और इब्रानियों 11 में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। Some of them are actually very famous heroes of faith. और इनमें से कुछ तो बहुत ही प्रसिद्ध नायक हैं अपने विश्वास के, Like Abraham, Isaac, Jacob, Moses and others. और इब्राहिम हो गया, उसमें इसहाक हो गया, याकूब हो गया, मूसा हो गया। But it also talks about some unsung heroes. लेकिन कुछ ऐसे लोगों का भी वर्णन है जिनके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है। These are the heroes of faith we don't talk about much. और ये भी नायक हैं अपने विश्वास के, लेकिन इनकी बात हम ज्यादा नहीं करते हैं। They did extraordinary things in their life through faith, but we don't talk about them much. उन्होंने भी बहुत अद्भुत काम किए अपने जीवन में, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। Today we are going to look at one such a hero. आज हम ऐसे एक व्यक्ति की बात करेंगे। Please turn to Hebrew chapter 11 verse 5 and 6. Someone can read this. इब्रानियों 11 5 और 6 निकाल दीजिए। By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. And before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because everyone who comes to him must believe this, that he exists and that he rewards those who earnestly seek. No, the Bible doesn't talk. Please, Hindi also. If you can please say Hindi. विश्वास ही से अगर वो उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उससे उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। No, the Bible doesn't talk much about Enoch. इनोक के बारे में बाइबल ज्यादा नहीं बताती है। Only in few places it talks about him. और कुछ ही जगहों पर उसके बारे में बात होती है, But those few places are enough to know him well. लेकिन वो कुछ जगहों पे जो वर्णन किया गया वही पर्याप्त है उसके बारे में जानने के In लिए। the entire Bible, his name is mentioned in only 10 places. 10 जगहों पर ही केवल बाइबल में उसका नाम दर्ज है, And only 3 places talks about what he actually did. और 3 जगहों पर लिखा है उसने असल में किया क्या था। Can someone read please Genesis chapter 5 verse 22? उत्पत्ति 5 का 22 कोई निकाल सकता है? Genesis 5:22. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. और मेतुशेलह के जन्म के पश्चात अनोख 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। So the first thing the Bible talks about is he walked with God. और वचन में लिखा है, पहली चीज हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। So what is the first thing you need to walk with God? तो क्या चीज आवश्यकता है पहली चीज की, अगर चलना है साथ में परमेश्वर के? तो To walk with God, we need to have a commitment to God to walk with Him. और अगर परमेश्वर के साथ साथ चलना है तो एक समर्पण होना चाहिए उसके साथ चलने के लिए। Amos 3:3 says, "Do two walk together unless they agree to walk together."
और आमोस में लिखा हुआ है कि क्या दो लोग साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो एक दूसरे के साथ चलने के। It is an agreement between us and God that we walk together. और ये एक सहमति है हमारे परमेश्वर के बीच में कि हम साथ चलेंगे। It is an open heart commitment to God that I will walk with you. और ये खुले दिल से ये समर्पण है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। God honors our commitment and walks with us. और परमेश्वर हमारे इस समर्पण को आदर करते हुए हमारे साथ चलते हैं। But we cannot make a commitment that I will walk with him and then go on our way and expect God to walk with us. लेकिन फिर हम ये नहीं कर सकते कि हम ये समर्पण तो कर दें कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, लेकिन फिर अपने रास्ते पर निकल जाएं और फिर ये अपेक्षा करें कि परमेश्वर फिर भी हमारे साथ चलता है। It is accepting his will and walk with him. इसका मतलब ये होता है कि उसकी इच्छा को जानते हुए और उसके साथ साथ चलें। We cannot expect God to accept our will and walk with us. हम ये नहीं कर सकते कि हम ये अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमारी इच्छा को के अनुसार हमारे साथ साथ चले। So we walk with him and go with him wherever he wants to take us. तो हम उसके साथ चलते हैं वहां जहां वो लेके हमें जाता है। And sometimes he takes us through paths that really troubles us. और कभी कभी वो ऐसे रास्तों में लेके जाता है हमें जिससे हमें कष्ट होता है। That's what we've been listening to the sermon for the past few months. और कुछ महीनों से वही संदेशों की श्रृंखला में आप सुन रहे थे मुझसे। God was taking Israel through the wilderness. और इजराइल को परमेश्वर उस जंगल के वीराने से होकर लेके जा रहा था। They had to go through a lot of difficult times. और बहुत कष्ट वाले परेशानियों के समय से वो होकर गुजर रहे थे। But in the midst of all that, we also said God was with them all the time. लेकिन उसके बीच में मैं ये भी देखा कि उस पूरे समय में भी परमेश्वर उनके साथ थे। So sometimes God takes us through the wilderness experience. तो कभी कभी परमेश्वर हमें उस वीराने जंगल के हालातों से लेके गुजरता है। When we go through those ways, we do not know the road, we do not know how to go through. और जब उस रास्ते से जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि उस रास्ते में कैसे आगे बढ़ा जाए। He knows the way and he also knows where he is taking us. लेकिन परमेश्वर को रास्ता भी मालूम है और ये भी मालूम है कि कहाँ पे आगे लेके जाना है। Walking with God also means never going back on your commitment. और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये होता है कि अपनी बात से हम फिर कभी इनकार ना करें। Even when the road becomes very tough. और जब कभी के रास्ता बड़ा कष्टदायी हो जाता है तब भी। Now the question is, when two people walk together, what is the most important thing they do? और एक सवाल यहाँ उठता है कि अगर दो लोग साथ चलते हैं तो साथ चलते चलते सबसे खास काम क्या करते हैं? What do they do when they walk? Talk. They talk to each other. वो बात करते हैं एक दूसरे से। They talk to each other and listen to each other. एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते भी हैं। Walking with God also means talk to him and listen to him. और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या होता है? उसकी बात सुने, उससे बात करें। When the road is very rough and tough, God talks to us, encourages us to walk with him. और जब रास्ता बड़ा खराब हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है आगे बढ़ने के लिए। But when he talks to us only through his words. लेकिन वो जब हमसे बात करता है तो अपने शब्दों से, वचन से बात करता है। So reading this book is very, very important. इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत आवश्यक है। If you don't read this verse, then you cannot hear God's voice. तो अगर इसमें शब्दों को नहीं पढ़ेंगे तो उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। We are coming to church we are not coming to church for many years now. अब आप लोग तो कलीसिया में बहुत सालों से आते रहे हैं। God talks to us through the preacher who is standing here. और परमेश्वर जो यहाँ प्रचारक खड़ा प्रचार कर रहा है उसके शब्दों से बात करते हैं। Whenever you read Bible, जब भी आप वचन पढ़ते हैं, sometimes some verse really hits you very hard. और जब पढ़ते हैं तो कुछ वचन जो है वो बहुत विशेष रूप से आपके ऊपर उसका असर पड़ता है। You really feel that verse is for you. और आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये पद तो बिल्कुल मेरे लिए है। The same way the preacher preaches. और ऐसे ही होता है जब प्रचारक भी प्रचार करते हैं। I listen to a lot of messages. मैं बहुत से संदेशों को सुनता हूँ। When I drive up and down to the school, I listen to so many messages. और जब मैं स्कूल जाता हूँ कार में तो मैं संदेशों को सुनता हूँ। But whenever some preacher preaches, sometimes feel like that God is talking to me. और कभी-कभी जब कोई प्रचार करता है तो मुझे महसूस होता है कि अरे ये तो परमेश्वर मुझसे प्रत्यक्ष रूप में बात कर रहे हैं। Automatically I cry, I clap my hand. और कभी-कभी मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं या मेरे हाथ से ताली बज जाती है। Because we know that God is speaking to you through someone. क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर किसी के द्वारा तो मुझसे बात कर रहे हैं, But through the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा। So God does talk to us. तो परमेश्वर सच में हमसे बात करते हैं। But are we willing to listen to him? लेकिन क्या हम इच्छुक हैं उसकी बात को सुनने के लिए? But when the path is very rough and tough,
we tell him, Lord, I am tired. और जब रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो क्या हम उससे कहते हैं कि परमेश्वर मैं थक गया हूँ? So through listening and talking, we build a relationship with God. तो जब उसके बात सुनते हैं, बात करते हैं, तो संबंध की स्थापना होती है परमेश्वर के साथ। That relationship gives us a strength to walk through the rough path of life. और वो जो संबंध है, उससे हमें सामर्थ मिलता है कि ऐसे मुश्किल समय में हम आगे बढ़ते जाते हैं। Also, that gives us a strength in our faith as well. और इसी से हमारा सामर्थ आता है हमारे विश्वास में भी। Maybe the path, sometimes the path where we go through may be a dark one. हो सकता है जो रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता अंधकार से भरा हुआ है, We don't know where to keep our next step. अगला कदम कहाँ रखना ये भी नहीं मालूम है। But if you are walking with God, He knows where to keep our लेकिन next अगर step. परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो उसको मालूम है कि अगला कदम कहाँ पड़ना चाहिए। Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like a light to you. That's what He says. और अंधकार भी जो है वो अंधेरा नहीं लगेगा, जो रात है, रात में भी ऐसा चमकेगी कि जैसे कि दिन हो रखा So है। if you are walking with God, we do not need to be afraid of dark places of life. और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो जीवन में अंधकार के उन समयों से आपको भयभीत होने की Because आवश्यकता नहीं है, the darkness is as light to Him. क्योंकि परमेश्वर के लिए वो जो अंधकार है वो ज्योति के ही समान है। All we have to do is to just hold on to His hand and walk with Him. और सिर्फ ये करना है कि उसका हाथ पकड़ करके आगे धीमे धीमे चलना है। Someone can please read Isaiah chapter 40 verse 18. Isaiah यशायाह 40 का 18 chapter 42, I think. 42. 42 देख लीजिए। Who is blind like my servant, and deaf like the messenger I sent? Who is blind like the uncommitted, blind like the No, servant? 42, 16. 42. Isaiah 42, 16. And I will lead the blind, and those they have not known. Yeah. Along unpolluted paths I will guide them, and turn the darkness into light before them, and make the rough places smooth. These are the things I will do, I will not forsake. But those who trust in idols, who say to images, you are our gods, will be turned back in the shame. Hindi please. मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे मैं नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधेरे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको मत त्यागूंगा। Yeah. No, I will lead the blind by the way they have not known. और मैं जो दृष्टिहीन है उन्हें ऐसे प्रकार रास्ते में लेके जाऊंगा जो वो कभी जानते नहीं थे। Along unfamiliar path I will guide them. और जिन रास्तों से वो वाकिफ नहीं है उन रास्तों से मैं उन्हें लेके जाऊंगा। I will turn the darkness into light before them. और उनके सामने अंधकार को मैं ज्योति में परिवर्तित कर दूंगा। Make the rough places smooth. और जो रास्ता जो खराब रास्ता है उसको मैं मुलायम कर दूंगा And I will not forsake them. और उनको मैं त्यागूंगा So नहीं। this is a promise God gives us when we walk with Him. और ये वाचा परमेश्वर हमारे साथ बांधते हैं, वायदा करते हैं जब उसके साथ चलते हैं। It's a blessing of promise. ये वायदा है जो परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया है। He said, I will be with you, I will do all these things for you when you walk with me. और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, ये सारी बातें मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। So we have to make a commitment to walk with God. तो इसलिए एक समर्पण बनाना है कि हम उसके साथ चलेंगे। There are so many Christians who accepted Him in their life, but they don't walk with Him. और बहुत से मसीही हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण तो किया है लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। They have accepted Jesus, invited Him in their life, but their life never changes. और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया, लेकिन उनके जीवन में ये सब आगे दिखाई नहीं पड़ता They है। live the same way they lived before. और जो जीवन उनका पहले का था वही जीवन उनका आज भी बना हुआ है। So make a commitment to walk with the Lord and walk actually with Him.
और इसलिए एक समर्पण करिए कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, उसकी बात को मानता हुआ आगे So walk with the Lord actually means total surrender to His will. और इसका मतलब ये होगा कि जो परमेश्वर की इच्छा है पूर्ण रीति से उसमें समर्पित हो जाना, Total surrender of our desires to Him. पूर्ण रीति से जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना, Total surrender of our future plans to Him. और जो भी हमारे भविष्य की योजनाएं वो सब परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना, And total surrender of our time to Him. और जो हमारा समय है वो परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना, Total surrender of everything and walk with Him humbly. और हर चीज को समर्पित करके प्रभु के साथ साथ चलना। That is exactly what Enoch did there. और इनोक ने यही किया, That's why he had the relationship, the kind of relationship that he had with God. इसलिए वो संबंध उसका था प्रभु के साथ, जैसा कि हम देखते So there was one more man who walked with God before Enoch. Anybody know? हैं। और इनोक से पहले एक और व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चलता था, वो कौन था? Any idea who was? Adam. Adam walked with God. आदम था, वो चलता था परमेश्वर के साथ। They walked every day with God, but what did they had to keep themselves, hide themselves. और चलते थे प्रभु के साथ, लेकिन एक दिन अपने आप को छिपाना पड़ गया था। The difference between Adam and Enoch was और आदम और इनोक में जो चीज अलग थी वो ये थी Adam walked with God physically. कि आदम जो था वो प्रत्यक्ष रूप में, शारीरिक रूप में परमेश्वर के साथ चलता था, Whereas Enoch walked with God in faith. लेकिन इनोक जो था वो विश्वास में हो करके प्रभु के साथ चलता था। Enoch never saw God, but he walked with Him in faith. इनोक ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन विश्वास में हो करके चलता था। We never see God, but we walk with faith. हम प्रभु को देखते नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन हम विश्वास में चलते हैं। So we walk with faith. We walk with God in faith. इसलिए हम परमेश्वर के साथ विश्वास में होकर के चलते हैं। We don't see God to hold His hand and walk. हम उसका हाथ दिखाई नहीं पड़ता कि देख के हम चलने पाए, But in faith, we hold His hand and walk with Him. लेकिन विश्वास में आत्मिक रूप से हम उसका हाथ पकड़ के चलते In हैं। faith, we know God is with us and walk with Him. विश्वास में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, हम उसके साथ चलते हैं। You know, Enoch and Adam and Enoch were contemporaries. और आदम और जो इनोक था वो एक ही समय के दोनों थे। Enoch was great grandson of Adam. 5 times. 5 गुना पोता कह सकते हैं, 5 गुना वो आदम के बाद आया समय था। Because when Adam was 622 years, Enoch was born. जब आदम 622 वर्ष का था तब इनोक पैदा हुआ था। More than 300 years, they were contemporaries. 300 साल के अंतर में ये लोग साथ साथ का उनका समय था। So being a great grandfather, Enoch must have asked him, तो अगर आदम जो है वो इतना बड़ा उसका दादा पुरखा रहा होगा, तो इनोक ने कभी तो कुछ पूछा होगा Grandpa, I heard that you walked with God physically. कि दादा हमने सुना है कि आप तो परमेश्वर के साथ सामने सामने चलते थे। I'm just imagining things. तो मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ। And Adam must have answered with eyes full of tears. और आदम ने क्या पता आंसुओं से भर के उसको कुछ जवाब दिया होगा। Oh yeah, I walked with him. I enjoy the peace that he gave me. और हाँ, मैं तो उसके साथ चला हूँ और मैंने तो उसकी शांति को भी अनुभव किया है, And the freedom I had, और जो स्वतंत्रता मेरे पास थी, and the fearless life I had, और जो बिना भय का जीवन हुआ करता था, so beautiful, so holy, so fulfilling. इतना सुंदर, इतना पवित्र, संपन्न जीवन था। I did not even know what sin was मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि पाप क्या होता है, until we both died together and destroyed everything. और जब तक हमने सब दोनों ने मिल करके उसको नाश नहीं कर दिया। This young man must have thought, और इस जवान व्यक्ति ने ये सोचा होगा, when my great grandfather could walk with God, why can't I walk with him? और अगर मेरा पुरखा जो दादा है अगर वो चल सकता है परमेश्वर के साथ, तो मैं क्यों नहीं चल सकता? Lord, I cannot see you, but I know you are there. परमेश्वर, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि आप हैं। I want to walk with you as my great grandfather did. और जैसे मेरे दादा परदादा चलते थे, मैं वैसे आपके साथ चलना चाहता हूँ। He walked with God in such a way. One day God said, "Come with me to heaven and walk with me physically." और इस प्रकार से उसका जीवन था, उसका दिनचर्या थे कि एक दिन परमेश्वर ने कहा कि अब तू मेरे साथ स्वर्ग में चल, और तू वहां पे तू मेरे साथ चल। So God took him, and he will never experience death. और उसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, परमेश्वर उसको अपने साथ ऊपर ले गया। He faithfully walked with God for more than 300 years. 300 वर्षों से ज्यादा वो परमेश्वर के साथ विश्वास में चलता रहा। Just imagine 300 years he walked with God. सोचिए 300 साल परमेश्वर के साथ चलना।
For us, it is very, very hard even to walk 30, 40 years with God. हमारे लिए तो 30-40 साल भी चलना मुश्किल हो जाता है। You may say probably he did not get any care, nothing to worry about. He was alone on what and was able to walk with God. आप कह सकते हैं कि अरे वो तो अकेला था, उसके ऊपर कुछ चिंताएं नहीं थी, इसलिए वो परमेश्वर के साथ इतना चल पाया। But no, he was a family man. नहीं, ऐसा नहीं है, वो परिवार वाला व्यक्ति था। Because when he was 63 years old, his son Methuselah was born. 63 वर्ष का जब था तब मेथुशेलह पैदा हुआ था। After he became father of Methuselah, he lived for another 300 years and had children. और मेथुशेलह के बाद भी 300 वर्ष वो और जीवित था और उसके बच्चे थे। And he walked with God almost 300 years. और उन सारे 300 वर्षों में उन वर्षों में वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। He was a family man like any of us. और हमारी तरह है, वो एक परिवार वाला व्यक्ति था। He had all the problems and difficulties of life. और सारे जो जीवन की परेशानियां और संकट होते हैं वो उसके साथ थे। So in the midst of all his problems, in the midst of all his difficulties, he was able to walk with God. सारी परेशानियों समस्याओं के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। So we have no excuse. इसलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। We may not be able to walk to God in heaven. शायद हम स्वर्ग में इस प्रकार से ना चलने पाए, We may not be able to walk to heaven with God. और स्वर्ग में चलते हुए प्रभु के साथ ना जा पाए, But we can walk in faith on earth. लेकिन इस पृथ्वी पर विश्वास में चल सकते हैं। Another excuse people may come up is, okay, today in today's situation it's very hard to walk with God because the situation is the people are so evil and wicked. और कुछ बहाना एक और दूसरा बनाते हैं कि अरे भाई आज के समय में प्रभु के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जमाना जो है वो बहुत बुरा हो गया है, दुष्ट हो गया है। Actually, the situation was the same. परिस्थितियां उस वक्त भी वैसे ही थी। Now, his great grandson Noah, what the Bible says about Noah's time. और उसके बाद जो उसका पोता जो था ग्रेट ग्रैंडसन नोआ, उसके बारे में वचन क्या बताता है उस समय के बारे में? Someone please read Genesis chapter 6 verse 5. उत्पत्ति 6:5. 6:5. When the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Yeah. और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होगा। This happened during the time of his great grandson Noah. और ये उसके पोते का जो पोता था नूह, उसके समय की ये बात है Man's wickedness was great. कि मनुष्य की जो दुष्टता थी वो बहुत बढ़ गई थी। Man's thoughts only was evil. मनुष्य के जो विचार थे केवल दुष्ट और बुराई से भरे Not थे। much between the difference between Noah's time and Enoch's time. तो एनोक और नोआ के समय में ज्यादा अंतर नहीं था। So people were around were evil and wicked. तो उस समय के जो लोग थे हम कह सकते हैं कि वो सब बहुत बुरे और दुष्ट थे। So in the midst of all the wicked and evil men, Enoch was able to walk with God. तो इतने सारे बुराइयां और दुष्ट लोगों के बीच में भी एनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था। Now that is exactly as a Christian we have to do in this world now. और मसीह होने के नाते आज के समाज में बिल्कुल यही बात हमें भी करनी है। We are surrounded with wrong people. और सारे जो प्रकार के बुराइयों से, बुरे लोगों से हम घिरे हुए हैं। All the time people look for wickedness and evil. और हर वक्त लोग जो है बुराई और दुष्टता करने में लगे हुए हैं। God has put us in the midst of them. और उनके बीच में परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। So we have to walk with God in the midst of those people. और उनके बीच में ही हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। The second thing he did was he pleased God. दूसरा काम जो उसने ये किया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। That's what Bible says. He pleased God. कि लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। So again, it's a commitment from us. और इसका मतलब ये कि ये भी एक समर्पण है हमारे जीवन में। Commitment to please God. एक समर्पण है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न रखेंगे। Unless we determine to please God, we will never be able to do it. और अगर हमारे मन में ये बात नहीं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न रखेंगे, हम आगे नहीं चल पाएंगे। Someone please read Hebrew chapter 11 verse 5. 11:5, इब्रानियों 11:5। By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Yeah. विश्वास ही से ननोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। So he was commended as one pleased God. Commended as one pleased God. और उसके बारे में कहा गया कि वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को प्रसन्न But किया। how did he please God? लेकिन उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया कैसे?
verse 6 says, without faith it is impossible to please God. और 6वें पद में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। But very often this particular verse is misinterpreted by Christians. लेकिन कई बार ये जो पद है इसका गलत मतलब जो है मसीह लोग निकाल लेते हैं। So very often people think to please God, all I need to have is only faith. और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक ही बात चाहिए और वो है विश्वास। If I have faith then God is pleased. अगर मेरे पास विश्वास है तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। This verse does not give that meaning. ये मतलब जो है इस पद का नहीं है। What this verse means is to please God, the first thing that I need is faith. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो पहली चीज की आवश्यकता है वो है विश्वास। Faith in what? किस चीज में विश्वास? Faith in existence of God. कि इस चीज में विश्वास है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। You cannot even please anyone, someone whom you don't believe that exists. आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आप यही विश्वास नहीं करते हैं कि उसका अस्तित्व है। So how can you please anyone you don't believe that he exists? लेकिन कैसे आप ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं? That is what the writer means. यही मतलब यहाँ पे लेखक का है। Without faith, you cannot. It is impossible to please God. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। So the first thing is to please God. You should believe that God exists. और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहली बात आवश्यक ये जानना है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। And rewards those who earnestly seek Him. और जो लोग उसको ढूंढते हैं वो उनके पास आता है Or answers their prayers. और वो उनके प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। If you don't believe that He answers your prayers, why would you seek Him? और अगर आप विश्वास नहीं करते कि आपके प्रार्थना को उत्तर देता है तो आप उसे क्यों खोजेंगे? Why would I walk with Him, or why would I please Him if you believe that He doesn't exist, or He answers prayers? और अगर मेरा ये विश्वास ही नहीं है कि वो उसका अस्तित्व है, प्रार्थना को उत्तर देता है, तो फिर मैं उसे क्यों भला प्रसन्न So करूंगा? to please God, I need faith. इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे विश्वास की I आवश्यकता है। need the faith in the existence of God, that He lives. मुझे विश्वास चाहिए इस बात में कि वो जीवित है, उसका अस्तित्व है। Also, you need to have faith that He answers our prayers. और ये भी विश्वास चाहिए ये जानने के लिए कि वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। Without these two, we won't even try to please God. इन दोनों की बातों के बगैर हम कोशिश भी ना करें उसको प्रसन्न These करने are the basics that we need to please की। God. और ये मूल दो बातें हैं जो आवश्यक हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। So how can I please Him? तो कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? There are three aspects through which we can please God. 3 पहलू हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Our thought life, हमारा जो विचार है, our speech, हमारा जो बातचीत है and our action. और जो हमारा क्रिया है, That is our life, right? ये हमारा जीवन है। Our thought life, speech, and action. हमारे विचारों का जीवन, हमारा जो बोलते हैं वो, और जो हमारी क्रियाएं हैं। 3 areas of our life through which we can please God. 3 क्षेत्र हमारे जीवन के जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। My thought life. मेरा जो सोच विचार है वो, Though the scientists say every human being goes through about 10,000 thoughts every day. और वैज्ञानिकों का कहना है कि एक औसत तौर पे एक व्यक्ति प्रतिदिन 10,000 विचारों उसके दिमाग से होकर गुजरते हैं। We all must have gone through at least about 2,000-3,000 thoughts through our mind since we got up from the bed. और शायद सुबह उठने के बाद से 2-3 हजार विचार हमारे दिमाग से गुजर चुके होंगे। And you may probably have another 8,000 before you hit the bed again. और शायद सोने से पहले 8,000 विचार और हमारे दिमाग में आने होंगे। Every day you have a chance to make 10,000 thoughts in your mind. और एक मौका हमें मिलता है प्रतिदिन 10,000 औसत पे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। And how we are going to make the thoughts depends on us. और वो विचार हमारे कौन से होंगे, कैसे होंगे, ये निर्भर हम पे करता है। For example, if somebody gives us 10,000 rupees and say you have to spend all this money by evening, you spend it in your way. What do we do? अगर उदाहरण के लिए कोई आपसे कहे कि 10,000 रुपए लो, शाम तक तुम जैसे चाहो इस 10,000 को खर्चा करो, तो आप कैसे खर्च करेंगे? We would sit and plan how to spend that 10,000. तो आप बैठ के थोड़ा सा योजना बनाएंगे 10,000 को कैसे खर्च करना है। So to make a choice to have proper thoughts, we have to plan. तो चुनाव करें, योजना बनाएं कि अपने विचारों को हम कैसे खर्च करेंगे। You can either go through a lot of negative thoughts, हो सकता है बहुत से नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते रहे bitter, anger, jealousy, pride, lust. और कड़वाहट से भरे हुए और ईर्ष्या से भरे हुए, गंदे विचारों से भरे हुए।
So many other unnecessary thoughts we can go through. और सारे अनावश्यक विचार हमारे दिलो दिमाग में आ सकते हैं। Or you can have positive thoughts like love, peace, joy, patience, forgiveness, and purity. और यह सकारात्मक विचार आ सकते हैं जो धीरज से हैं, प्रेम के हैं और पवित्रता के, ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ सकते हैं। The choice is ours. ये चुनाव हमारा है, We choose what we think. हम चुनाव करते हैं कि हम क्या सोचेंगे। Either we can go through a lot of negative thoughts or we can go through a lot of positive और या thoughts. तो हम बहुत से नकारात्मक विचार या बहुत से सकारात्मक विचारों से गुजर सकते हैं। But does it matter? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? Why should I bother what I think? क्यों मैं इस बात से चिंता करूं कि मैं क्या सोचता हूं? Does God bother about it? क्या परमेश्वर को इससे कोई फर्क पड़ता है? Someone will please Psalm 139 verse 1 and 2. Psalm 139 भजन 139 1 and 2. Verse 1 and 2. 1 और 2, भजन 139। Psalm 139 verses 1 and 2. O Lord, you search me and know. You have searched me and know me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. Yes. Hindi. Hindi, please. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। So God knows our thoughts. परमेश्वर हमारे विचारों को जानते हैं To please God, my thoughts should be clear. और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मेरे जो विचार है वो स्पष्ट होने My चाहिए, thoughts should be right. मेरे विचार सही होने चाहिए। We cannot please God with all our dirty and unnecessary thoughts. और अनावश्यक गंदे विचारों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। God searches our heart. परमेश्वर हमारे हृदयों की जांच करता है। Lord, God looked at David's heart. परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा। That's why when Samuel was going to anoint the eldest son of Jesse, he said no. और इसीलिए जब शमूएल था वो जैसी के बड़े लड़के को अभिषेक करने जा रहा था, He said, "You look outside, I look inside." तो परमेश्वर ने कहा तुम बाहर देखते हो, मैं तो अंदर देखता हूँ। And he said, "Anoint this young boy David." और उसने कहा कि नहीं, ये जो जवान लड़का है दाऊद, इसका अभिषेक So करो। then that must have that actually means God saw David's heart and He know what it was. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा होगा, तभी उसके विचारों को वो जानता था, That's why He anointed him. तभी उसने दाऊद का अभिषेक किया। So God makes it a point to look in our hearts. इसलिए परमेश्वर इस बात को निर्धारित करता है कि वो हमारे हृदय के अंदर झांक के देखता है। It is very, very important to have purity of thoughts to please God. इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पवित्र विचार होना बहुत आवश्यक है। But how do I keep that clean, my heart? लेकिन मैं अपने हृदय को, विचारों को स्पष्ट कैसे रखूं? In the computer world, there is a word called GIGO. और जो कंप्यूटर का दुनिया है उसमें गाइगो, GIGO नाम का एक शब्द प्रयोग होता है, Garbage in, garbage out. जिसका मतलब है अगर कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही मिलेगा। When you feed bad data, you get the bad thing outside. Isn't it? अगर आप उसमें खराब सूचनाएं डालेंगे तो उसका जो नतीजा वो भी खराब ही मिलेगा। Same with our life. हमारे जीवन के साथ भी यही होता है, What you put determines what comes out of your life. जो आप जीवन में डालेंगे वही बाहर निकलेगा। What you watch, what you read, क्या आप देखते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, reflects on your thought life. ये हमारे विचारों में साफ तौर से दिखाई देता है। And your thought reflects in your speech and action. और जो हमारा विचार है वो हमारे बातचीत में, हमारे क्रियाओं में भी दिखते So हैं। it's very, very important for us to guard our thoughts life. इसलिए बहुत आवश्यक है अपने विचारों की हम निगरानी करें। If I'm watching particular movie or particular scene disturbs my thought life, I avoid watching it. अगर कोई ऐसी चलचित्र है, कोई ऐसी विचार है, मूवियां हैं जिससे मेरे विचार जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो मैं उसको ना देखूं I'm not going to lose anything by not watching it. और उसको ना देख करके मेरा कोई नुकसान नहीं होने But वाला I है, lose everything by watching it. लेकिन उसको देख करके मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, So I will avoid it. तो मैं उसको फिर ना करूं। So when I even with reading books or listening to news,
If you distress my thoughts life, I will do it. तो अगर कोई किताब पढ़ के कोई समाचार पढ़ के मेरे विचारों में ऐसा होता है तो फिर ना देखो, ना करो। We will avoid doing anything which disturbs our thought life. कोई भी चीज जो हमारे विचारों में उथल पुथल मचा देती है उसको हम ना करें, Because God looks out our heart. क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को विचारों को देखते हैं। So it's so very, very important keep our thought life pure. इसलिए अपने आवश्यक है अपने विचारों की दुनिया को साफ रखें। You know, the psalmist said in 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against. और भजन लिखने वाला कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। God's word purifies our heart and mind. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को, हमारे मन को साफ करता है। Saturate yourself with God's word. इसलिए अपने आप को हम छान लें परमेश्वर के वचन से। What you put in your heart determines what your thought life is. जो अपने हृदय में डालेंगे उसी से निर्धारित होगा हमारे विचार क्या। Your thought determines what is your action. और हमारा विचार यही निर्धारित करेगा कि हमारा क्रियाएं क्या होंगी। David said, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to your Lord. और दाऊद ने कहा कि जो मेरे शब्द हैं और इन सारी भावनाओं से, कल्पनाओं से जो मैं आराधना करता हूँ, वो आराधना तेरे सम्मुख जो है तुझे प्रसन्न करने वाली है। God, we please God through our thoughts, speech and action. हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं अपने विचारों से, अपने क्रियाओं से और अपने शब्दों से। The verse says, Enoch pleased God. वचन में लिखा हुआ है कि हेनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। He pleased him so much, God said, you come with me and stay. उसने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि परमेश्वर ने कहा अब तो मेरे साथ स्वर्ग चल। Enoch walked with God, pleased God, and thirdly, he preached God. उसने परमेश्वर के साथ चला, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसने परमेश्वर का प्रचार भी किया। The book of Jude calls him a prophet. और जूड किताब में लिखा हुआ है कि वो तो एक भविष्यवक्ता था। If you read the book of Jude, verse 14 and 15, it says he prophesied about the second coming of Jesus. और जूड में लिखा हुआ है कि उसने यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में भविष्यवाणी करी। See, the Lord is coming with thousands upon thousands और कहा कि देखो परमेश्वर हजारों के ऊपर आ रहा है of his holy ones to judge everyone. और अपने पवित्र लोगों के पास आ रहा है और उनका न्याय करने के लिए आ रहा है। There is no reference in the Old Testament to say that he was a prophet. और पुराने नियम में कोई वचन नहीं दिया हुआ है जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि वो एक भविष्यवक्ता था। But the thing is that we should understand the Bible is the God's inspired word of God. लेकिन हमें ये समझना है कि परमेश्वर जो वचन है वो परमेश्वर से प्रेरणा पाया हुआ वचन है। God inspired people to write whatever He wants them to write. परमेश्वर ने प्रेरणा दी थी लोगों को ताकि वो लिखें जो परमेश्वर चाहता है कि वो लिखें। So God inspired Jude to write that Enoch was a prophet. That actually means Enoch was a और परमेश्वर ने अगर यहूदा को प्रेरणा दी कि वो लिखे तो उसने लिखा कि जो हेनोक था वो एक भविष्यवक्ता था। The second prophecy was through the name that he gave to his son Methuselah. और दूसरा जो बात देखते हैं जो नाम दिया था उसने अपने बेटे को मेथुशेलह, उसमें एक बात देखते हैं। Methuselah actually means his death shall bring. His death shall bring. और जिसका मतलब है कि जिसकी मौत से कुछ आएगा। So what shall his death will bring? तो क्या आएगा उसकी मौत से? He died 600 years of Noah. और नोआ से 600 वर्ष पहले Methuselah lived 969 years. और 969 वर्ष मेथुशेलह जीवित रहा। The longest ever human being ever lived. और कोई भी मनुष्य इतना लंबा नहीं जीवित था। God must have told Enoch to name his son Methuselah. और परमेश्वर ने इनोक से कहा होगा कि बेटे को मेथुशेलह नाम देना। Because God was going to bring something when Methuselah died. क्योंकि जब मेथुशेलह की मौत होगी तब परमेश्वर कुछ तो लेके आएंगे। I will have a small mathematical calculation. और थोड़ा सा हम यहाँ पे To actually गणित करते हैं। find out what happened when Methuselah died. और क्या हुआ जब मेथुशेलह की मौत हुई? No, when Methuselah was born, he was 187 years old. इनोक was 187. इनोक 187 वर्ष का था जब मेथुशेलह पैदा हुआ था। He became the father of Lamech. नेमक का वो बाप बना। Lamech was born when Methuselah was 182 years old. और लेमक पैदा हुआ था जब मेथुशेलह 182 वर्ष का था। So Lamech was the father of Noah. तो लेमेक जो था वो नोआ का बाप था। So if you add both the years together, it comes to 369 years. दोनों को जोड़ देंगे तो 369 बन के आता है। And when Methuselah was 69 years old, Noah was born.
जब मतुशला 369 वर्ष का था तब नूह पैदा हुआ था। Now please someone read Genesis chapter 7 verse 11. अब आप उत्पत्ति 7 का 11 पढ़ें। The 600 year of Noah's life, the second month on the 7th day of the month, on that day, all the mountains of the great deep burst forth, and the windows of the heavens were received. Hindi please. जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूल निकले और आकाश के चरोगे खुले। Okay, when Noah was born, Methuselah was 369 years old. जब नूह पैदा हुआ तो उस वक्त मतुशला 369 वर्ष का था, And Noah was 600 years old when the flood came. और जब वो सैलाब आया था तो उस वक्त नोआ 600 वर्ष का था। If you add them together, it is 969 years, the year Methuselah died. और इसका मतलब है दोनों को जोड़ देंगे तो जो 969 बन के आएगा वो साल जब मतुशला की मौत हुई थी। When Methuselah died, the flood came. जब मतुशला की मौत हुई तब वो पूरा तूफान आया था। God told Methuselah 969 years ago to name his son Methuselah because he knew when he dies, the flood will come. 969 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था कि पुत्र को मतुशला नाम देना, क्योंकि उस नाम का मतलब है कि उसके मृत्यु के बाद वो बाढ़ आएगी। So the scholar says, after Methuselah, all the people went into the ark, God waited 7 days before bringing the rain. और विशेषज्ञों का कहना है कि जब सब लोग उस बड़ी किश्ती में चले गए थे तो 7 दिन परमेश्वर ने इंतजार किया था। Those 7 days are mourning for Methuselah. और वो 7 दिन जो थे वो मतुशला के जीवन के शोक मनाने के 7 दिन थे। So he prophesied this 969 years ago. और इस बात की भविष्यवाणी 969 वर्ष पहले उसने करी थी When he dies, it will come. कि जब उसकी मौत होगी तब ऐसा So होगा। when Methuselah died, the flood came. जब मतुशला की मौत हुई तब वो बाढ़ आई। What do we learn about this from this? और जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है, God is long suffering. परमेश्वर जो है वो देरी तक दूर तक हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। 969 years he waited before destroying the earth by flood. और 969 वर्ष उसने इंतजार किया जिससे पहले कि वो उस पृथ्वी पर वो बाढ़ लेके He आता। gave the chance. He gave the human being the chance to repent. उसने वो समय दिया, मनुष्य को समय दिया ताकि वो पश्चाताप करें। God gives time to every human being to repent. और परमेश्वर वो समय देता है, हर मनुष्य को देता है पश्चाताप करने के So लिए। Enoch walked with God. परमेश्वर ये हेनोक परमेश्वर के साथ चला Enoch pleased God. और हेनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया And Enoch preached God. और हेनोक ने परमेश्वर का प्रचार भी किया। As Christian, all these 3 things are important for us. मसीह होने के नाते ये तीनों बातें हमारे लिए आवश्यक हैं। We have to decide हमें निर्णय करना है whether we want to walk with God कि हम प्रभु के साथ चलेंगे कि नहीं, or we want to please God हम उसको प्रसन्न करेंगे कि नहीं, or we want to preach God. हम उसका प्रचार करेंगे कि नहीं। Think about it consciously. और इसको बहुत गहन सोच के साथ इसको Because these are the most important thing a Christian should have in their life. क्योंकि एक मसीह के लिए अपने जीवन में ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक बातें जो होनी चाहिए। Think about it and consciously make an effort to do all these things. और इसके बारे में सोचें, मनन करें और इसके बारे में निर्णय लें। Preach God, please God, walk with God, please God and preach God. प्रभु के साथ चलें और प्रभु का प्रचार करते रहें और प्रभु को खुश रखें, प्रसन्न रखें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं किस प्रकार से आपने वचन में बताया है कि कितने लोगों को आपने विश्वास में उठाया बढ़ाया और जिन लोगों ने अपने विश्वास में हो करके आपके लिए अद्भुत कार्यों किए। Lord, we see today in today's word that how you raise people with such wonderful faith and how their faith was able, because of the faith, they are able to do wonderful things for you. We pray, Lord, that we will be inspired by such heroes of faith and by what you did in their lives and through them. परमेश्वर, हम आज प्रोत्साहन पाने पाए आज के वचन में इन लोगों के जीवन को देख के और ये देख के कि आपने इनके जीवन के द्वारा क्या क्या किया। Help us, Lord, in today's time to learn, and in today's time to learn to be true, to be good witnesses, and to be someone who with whom God is pleased. हम ऐसे व्यक्ति बनने पाए
जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। हेल्प अस लॉर्ड टू वॉक विथ यू, हेल्प अस लॉर्ड टू हैव गॉडली थॉट्स, एंड हेल्प अस लॉर्ड टू ऑलवेज know that we are your channels of grace to the society around. प्रभु जी, हम हमारा चाल चलन आपका जैसा हो परमेश्वर। हम हमेशा आपके विचार हमारे दिल दिमाग में रहें, और हम ये जाने हमेशा कि समाज में जब बाहर जाते हैं तो हम आपके गवाह के रूप में साक्षी लोगों को देते हैं। Help us Lord to think of all of these things and make sure that we are that person whom you can count for all these things. प्रभु जी, हम इन सब बातों को सोचें और ऐसे व्यक्ति बने जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं इस सारे कार्यों को करने के लिए। इन जीसस नेम।